Morning, friends. Morning, all of you who are joining today my EBA user forms डिजाइन क्लासेस। आज का सुबह का समय में मैं सभी को विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग यूजर फॉर्म डिजाइन क्लासेस के अंदर स्वागत कर रहा हूं। मैं लास्ट क्लास मीन्स ऑन फ्राइडे we are discussing some forms controls. One is scroll bar, second one is pin button. Before that, we are further discussing some other form controls. Text box and combo box, option buttons, radio buttons, command button, label, text, like this. पिछले क्लास में हमने स्क्रॉल बार और स्पिन बटन के बारे में, फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बातचीत किया है शुक्रवार के क्लास में। इनसे पहले और कुछ फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बातचीत किया है, कोडिंग भी लिखा है, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और साथ साथ लिस्ट बॉक्स, कमेंट बटन, लेबल इत्यादि फॉर्म्स कंट्रोल्स के बारे में हमने सीख चुका है, बातचीत किया है, कोडिंग भी लिखना पता है, प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत किया हम लोगों ने। फ्रेंड्स, टुडे वी वांट टू इंप्लीमेंट a simple app. We are designing a form. Through that form, we are entering the data. Then this data will be transferred into the MS Excel sheet. As a students, every student can know the student details easily. They try to understand and comfortable with the student profile or student project. So due to that reason, as a teacher, I selected the student field. Like if suppose ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स डेटाबेस में मान लीजिए कोई भी डिजाइनिंग में मान लीजिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स है, तो स्टूडेंट रिलेटेड टॉपिक्स एज ए प्रोजेक्ट वर्क सेलेक्ट किया तो वो लोगों आसान का साथ साथ इंटरेस्ट के साथ, इच्छा और श्रद्धा और समझने के साथ वो प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सकते। काम करने के लिए भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स का जो रिलेटेड डाटा है। उसी कारण से मैंने भी बीबीए के अंदर स्टूडेंट्स फॉर्म क्रिएट करने के लिए निर्णय लिया है। स्टूडेंट्स फॉर्म्स के द्वारा हम जो फॉर्म के ऊपर टाइप किया गया समाचार को, डाटा को एक्सेल सीट पर लेकर जाके स्टोर करें। हाँ, बीच में मेरे को कोई इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है निमित से। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस all are covered the contents, but one or two topics are there. I can cover that things. That one is suppose this one variables and variable precedings. Variables के बारे में बताया मैंने, एक precedings एक वेरिएबल का नाम फ्रंट में एक प्रीसीडिंग एक सिंबल यूज करने की वजह से फिर उसका डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ मेथड्स एंड इवेंट्स, these are the pending. We can cover those things also within 2-3 days. First of all, we want to implement the practical thing, the forms. फॉर्म्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज के क्लास में एक स्टूडेंट फॉर्म डिजाइन करके फिर कैसे उसके एक्सेल सीट पर डाटा को लेकर जाना है, तो वो चीज हम डिस्कस करें। फ्रेंड्स, दिस इज माय एक्सेल शीट. Suppose if I want to go to Excel directly in Excel sheet also, for your convenient purpose, copy and pasted here the form. Rubin sir, can it is visible sir my sharing? Yes sir. Okay sir, thank you sir. Sometimes my blank screen will be going on, students are suffering. Thank you very much sir. Now I am continue the today class. So friends, look at here. In these days means in this week, we want to implement this project. Suppose if you are designing a form, student admission form, like our ITI students admission form in BBA, then after means submitting this form, the data we want to
transfer or say backend Excel sheet in a workbook. एक वर्कबुक के अंदर एक एक्सेल शीट पर जो फॉर्म पर टाइप किए गए समाचार डाटा को आपस में सेव करना चाहते हैं. तो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट हियर. कृपया मेहरबानी से आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर. So this is my form. Through this form, we can develop all these tasks. Suppose if you want to enter a new student details, then new form. After finishing the data means entering to store this data into MS Excel sheet. Then that purpose you can click on the save button. Suppose if a student was changed their group or some name and address. Here you are not using the address. Suppose if any contact number. So then with the help of edit option or edit feature, we can change it, modify or update whatever. मतलब एक्सेल शीट पर चेंज किया गया समाचार के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेनी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम चेंज करना है, कांटेक्ट नंबर बदल गया उसका, तो बाद में ग्रुप चेंज किया मान लीजिए, तो गलती से सपोज इन्होंने कैटेगरी गलत भरा है, तो डाटा एंट्री टाइम पर शुरू में मिस्टेक हो गया, उसको चेंज करना है. तो दैट पर्पस एडिट ऑप्शन. सपोज इफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट इज अवेलेबल और नॉट, इंक्वायरी after typing that student name or suppose particular roll number, then we want to find out whether the given student roll number or student details exist or not in a particular tray. Then if you want to close this form, then this close option, printing purpose, after getting data means a particular student record, if you want to take printouts, then print. Suppose one student is dropped from the course, 2-3 महीना 6 महीने के बाद उन्होंने कोर्स को छोड़ दिया उन्होंने due to some other reasons, their personal problems or some ill health, or their parents got some transfer from one location to another location. So due to that reason, maybe the student get drop the course. Or for that time, if you want to remove or delete a particular student data from MS Excel sheet via form, then we can use this delete option. पूरा समाचार को एक्सेल शीट पर सेव करने के बाद मान के चलते एक स्टूडेंट बीच में 2-3 महीने के बाद 6 महीने के बाद कोर्स छोड़ दिया है, तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा हमारा डाटाबेस में से एक्सेल शीट से डिलीट हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए ये डिलीट ऑप्शन, तो डिलीट ऑप्शन का कोडिंग लिखेंगे हम. तो डिलीट पर क्लिक करते समय पर किसको डिलीट करना है, कंप्यूटर हमसे बातचीत करेगा, इसको डाटा को हम पर्टिकुलर स्टूडेंट पर डाटा हम डिलीट कर सकते हैं वया फॉर्म्स का द्वारा. ये नहीं एक्सेल शीट पर जाके फाइंड वगैरह करके फिर राइट क्लिक डिलीट एंटायर रो, यू आर नॉट गोइंग टू दैट अप्रोच. उस प्रोसीजर द्वारा हम डिलीट नहीं करेंगे, वया फॉर्म्स का द्वारा ही डिलीट करेंगे. पहले स्टूडेंट्स का डाटा देखने के लिए, बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट्स का, ये तो पुराने इसका पहली वाली प्रीवियस नेक्स्ट आगे रिकॉर्ड, या तो सबसे आखिरी स्टूडेंट का डाटा देखने के लिए कहाँ तक हमने डाटा एंट्री किया है. Why you are providing these options means so the work is going on daily in an office or factory, industry, company, whatever. एक कार्यालय के अंदर कंपनी, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस डेली काम, प्रतिदिन काम चलता रहता है. एक दिन में सारे स्टूडेंट्स का डाटा तो एंटर नहीं कर सकते हैं सारे ट्रेड का. पर एक इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हैं, कोपाडी, टीपी, एसपी, हिंदी, इंग्लिश एंड फैशन डिजाइनिंग, IBM, CSA, CTS and CITS. So many trades are there. According to test, number of students also increasing. So if you want to entering the data every day, daily, the data entry operator or computer operator, so they must have should decide no. So what is the last record, last student details? मैन्युअली ऑफिस के अंदर काम करने वाले क्लर्कल पीपल्स क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते समय पर एक अच्छी एम्प्लॉय है तो वो मैन्युअली भी मेंटेन करता रहते, पेंसिल से पेन से टिक मार्किंग वगैरह करते रहते हैं. फिर भी देखने चाहते हैं तो डायरेक्टली जो लास्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या है, सो ये लास्ट टैब पर क्लिक करते समय पर फर्स्ट इस तरह नेविगेशन, रिकॉर्ड नेविगेटर कहते हैं हम इसको आगे पीछे बढ़ने के लिए. दीज टू वी कैन डिस्कस इट इन फर्दर. और आगे बढ़ने के बाद हम ये नीचे क्या इंक्वायरी के लिए, मतलब डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग कर रहे हैं हम,
एक स्टूडेंट को डाटा देखा, दूसरा स्टूडेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो मैसेज डिस्प्ले करना चाहते थे, ओके नहीं तो नो, और इत्यादि करस्पॉन्डेंस के लिए पहले मैंने रखा है ये कंट्रोल्स, के बारे में बाद में डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स प्लीज पे द इंटरेस्ट, आप कृपया मेहरबानी से थोड़ा इच्छा मीन्स इंटरेस्ट को, श्रद्धा को बढ़ाइए। दिस इज द मीन्स एंड स्टेज, अप टू दिस स्टेज वी आर क्रिएटिंग सिंपल फॉर्म्स। अभी तक हमने क्या किया, छोटा छोटा कंट्रोल्स को, एक एक कंट्रोल्स के लिए छोटा छोटा कोडिंग लिखते थे। अब सारे कंट्रोल्स को यूज में लेके एक बड़ा मीन्स एक कंप्लीट एक फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन आई एम गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन। मैं इस फॉर्म के बारे में इसलिए इतना मतलब ज्यादा समझा रहा हूं ताकि डे बाय डे इस फॉर्म का अनुसार ही हम कंटेंट्स के अनुसार, कंट्रोल्स के अनुसार कोडिंग लिखेंगे। एक दिन में 2 दिन में होने वाले नहीं है ये, एटलीस्ट इट विल टेक्स 1 वीक। तो ड्यू टू दैट रीजन फ्रेंड्स we will please try to understand. So look at here, I want to means explain this one. This is cut paste copied form here. I pasted here in my Excel sheet 3. शीट 3 के ऊपर आप लोगों को दिखाने के लिए फॉर्म से कट पेस्ट द्वारा मैंने प्रिंट स्क्रीन का सहायता से लेकर आया हूं। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म, इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म, then we know very well about the design developer, Visual Basic, student form. So this is my actual form. Okay, this is my student form. If I am executing like this, I want to show, before designing this form, I want to show you people to create interest. आपको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ रन करके दिखा रहा हूँ, सारे भी वो नहीं, सिर्फ फॉर्म को रन किया। फिर सेव करते समय पर द डाटा विल बी stored in backend Excel sheet per like this, roll number, name, trade, city, like email ID. The data will be transferred and saved in MS Excel sheet. So now please listen here. आप कृपया सुनिए इधर। सबको पता है एक फॉर्म को लेकर आना है, डेवलपर पर जाके विजुअल बेसिक, देन इंसर्ट न्यू फॉर्म। Okay, we are added a form. Then this one is the label. Please do one thing. First of all, you make it this form, screenshot or photo. Then and live class in front of you, आप लोगों का सामने एक नया फॉर्म लेके अभी डिजाइन करके दिखा दूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रेडीमेड ऑलरेडी डिजाइन। ओके, सो फ्रेंड्स हियर, so please make it a screenshot or photocopy, whatever it may be. Photo in mobiles. So here, so before designing this form, I want to discuss the various form controls. ये फॉर्म को डिजाइन करने से पहले इस फॉर्म को ऊपर जो डाटा को हमने कंसिडर किया है स्टोर करने के लिए एक्सेल शीट पर, उस कंट्रोल्स का बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए, अब सपोज क्लिक, ये तो फॉर्म। नाउ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप कृपया समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम आगे बढ़ गए हैं प्रोग्रामिंग में, फॉर्म डिजाइनिंग में। आप कंट्रोल पर क्लिक किए तो कंट्रोल एक्टिवेटेड, एनेबल, देखिए चारों तरफ से सिंबल्स आ गया। मींस दैट आई एम प्रेजेंट, आई एम selected the second text box. If I am clicked to the outside of the control, empty place of the form, then form will be in active mode, means form is selected. Then that time if I am pressing the F4 function 4 key, the form properties will be displayed. I want to explain, मैं ये बताना चाहता हूँ आपका, अभी हम बढ़ गया है फॉर्म डिजाइनिंग में। अगर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव मोड में आया हुआ है। अगर काली फॉर्म का काली जगह पर क्लिक किया है मैंने तो फॉर्म, ओनली फॉर्म एक्टिव मोड में आया हुआ है। अब F4 की दबाता मैं प्रॉपर्टीज के लिए, सिंपली प्रेस द F4 की, देन इट विल डिस्प्ले लाइक दिस form properties. Because at present, current situation, current position, I selected the form only. मतलब प्रस्तुत समय पर मैं फॉर्म को सेलेक्ट किया है, फॉर्म को एक्टिवेट किया है, इसीलिए फॉर्म का प्रॉपर्टीज को ही डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर मैं इस पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू माय सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म कंट्रोल, द प्रॉपर्टीज विल बी चेंज।
जो मैं फॉर्म कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा सिलेक्शन का अनुसार, नहीं तो आपने जिस फॉर्म को आप सेलेक्ट करते हो अप्लाइंग सिंगल क्लिक, उसी का अनुसार उस पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल का प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देते हैं प्रॉपर्टीज विंडो का अंदर। ये मैं समझाना चाहता हूँ। एज ए टीचर आई वांट टू एक्सप्लेन दैट थिंग। So at the time of seeing, some people are observed all are same. देखने में लगते हैं आपको सारे बराबर, एक्चुअली वैसे नहीं है। असली दौर में देखेंगे तो हम लोगों सारे बराबर नहीं है। अगर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते समय पर देखिए txt नेम, लॉजिकल नेम, टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज, जब txt नेम का जगह पर कुछ भी दिया आपने xyz cmb गलती से टाइप कर दिया लिखे, तो ओरिजिनली ये टेक्स्ट बॉक्स है। सो वो ये बताते रहते हैं टेक्स्ट बॉक्स आ गया, तो इसका मतलब text box properties, you are selected one of the text box form control. Okay, suppose if I am clicked here, then what happened? According to my selection, properties window will be changed combo box. That means I selected the combo box, so that combo box logical name is cmb trade. ट्रेड को सेलेक्ट करने के लिए, ट्रेड को एंट्री करने के लिए काम में लिया हूं, इसलिए लॉजिकल नेम cmb ट्रेड दिया है। लेकिन ये क्या है, एक कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल है, इसलिए ये नाम कभी नहीं बदलेगा। असली नाम, द ओरिजिनल नेम ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल नेवर बी चेंज। फॉर्म के ऊपर जिस फॉर्म कंट्रोल का आप रख रहे हो ना, उस फॉर्म कंट्रोल का असली नाम कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन लॉजिकल नाम बदलेगा। लॉजिकल नेम विल बी चेंज, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइनर और प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का अनुसार वो नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन असली फॉर्म कंट्रोल का मतलब कभी भी नहीं बदलेगा। आपने फॉर्म कॉम्बो बॉक्स को लिख रहा है तो कॉम्बो बॉक्स दिखाई देगा, टेक्स्ट बॉक्स को रखा है तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम, अगर सपोज लेबल को रखा है तो फिर लेबल। So here the logical name was not changed. Here due to that reason label 1. I am clicked the roll number label, LBL label, ROLL NO, रोल नंबर के लिए काम में लिया गया लेबल है, ये बताता है। तो आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने पुराने क्लासेस में बताया, पिछले क्लासेस में, एक फॉर्म का कंट्रोल का नाम लॉजिकल नेम देते समय पर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल का कैटेगरी का अनुसार, मतलब लेबल्स अपने काम में ले रहे, बहुत सारे लेबल्स, एक ही लेबल से एक फॉर्म तो होता नहीं, बहुत सारे लेबल्स को मैंने लिया काम में इधर। सो आपस में कंफ्यूजन है, लेबल 1 किसके लिए काम में लिया, लेबल 2 किसका काम में लिया है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, मतलब इस समस्या को दूर करने के लिए, सो लेबल के लिए लॉजिकल नेम LBL, दैट मींस इट विल इंडिकेट इट इज वन ऑफ द लेबल। रोल नंबर मींस रोल नंबर लिखने के लिए काम में लिया गया लेबल है। नेम देखिए LBL नेम, ट्रेड LBL ट्रेड, जेंडर LBL suppose sorry gender LBL gender, so that means LBL will indicate the label। इसी तरह TXT text box roll number के लिए काम में लिया, we are using to read or to display the roll number in that particular text box, so due to that reason roll number TXT will indicate the text box TXT roll number। I want to read the name of the trainee student, so here TXT will indicate the text box, name means student name purpose, like I can assign all the control form controls logical names, because it is one of the little bit small project work, so we are designing a proper forms, so due to that reason we are assigning proper logical names also through this logic। why you are assigning the logical names? लॉजिकल नेम्स क्यों हमें देना है एक फॉर्म कंट्रोल के लिए? बिकॉज ऑफ टू एक्सेस टू कंट्रोल दीज फॉर्म कंट्रोल्स वाया कोडिंग और प्रोग्रामिंग द्वारा, कोडिंग द्वारा आपस में ये फॉर्म कंट्रोल्स को हम काम में लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस लेने के लिए लॉजिकल नेम को संभालते, इसलिए लॉजिकल नेम असाइन करना जरूरी है ताकि आसान से पहचान सकते हैं। So whenever the child is entered into the means born in the world, then the parents will assign a name। दुनिया पर कोई भी बच्चा फायदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद तुरंत, कुछ लोग तुरंत कर देते, कुछ लोग अपना संप्रदाय के अनुसार 9 डेज के बाद, 12 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद, या तो पंडित ने कहा
कुछ दिन के बाद नामकरण करना है, तो नामकरण तो करना है क्योंकि आपस में कम्युनिकेट करने के। So the name is used for communication. The family members having 4 childs or 3 childs, both are male, all are same, boys or girls. So then अगर नाम नहीं तो पेरेंट्स कैसे बातचीत करेगा? छोटू तो ये बात आप ये काम करना, बड़ा वो काम करना, नहीं तो कुछ और बीच वाले की क्या बोलेगी, इस तरह वो कंफ्यूजन वाली बात। तो अशोक, किरण, मोहन, सो नाम ऐसा करने से क्या, इट कैन प्रोवाइड द क्लैरिटी फॉर कम्युनिकेशन। बातचीत करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक इंसान का नाम जरूरी है। उसी तरह फॉर्म कंट्रोल्स को हम लॉजिकल नेम्स इसलिए असाइन करते रहते हैं, कोडिंग द्वारा इस पर्टिकुलर कंट्रोल को हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक उदाहरण एज ए टीचर में ये उदाहरण बता सकता हूँ। सपोज इफ यू वांट टू स्विच ऑन द टीवी, देयर आर 2 ways are there. So one is physically switch on the switch board on the button, or if you have a remote, through that remote also you can switch on the TV. मतलब पहले सपोज स्विच ऑन करके छोड़ दिया, लेकिन बार बार उस नजदीक तक जाके उस टेलीविजन को ऑन एंड ऑफ करने की वजह से रिमोट के द्वारा डिस्टेंस से, मतलब रसोई घर के अंदर से भी ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, बेड पर बैठ के भी ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, कुछ और काम कर रहे हो कुर्सी पर बैठ के तब टीवी को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज रिमोटली एक्सेसिंग, दैट इज कॉल्ड एज ए रिमोट। अब दूसरी जगह पर खड़े होकर उसको ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, लाइक नाउअडेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन नेटवर्किंग आई वाज एक्सप्लेन, ड्यू टू दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एसी को बाहर से ऑन करना, ऑफ करना, IBM का क्लाउड कॉन्सेप्ट एलेक्सा, तो लाइट्स ऑफ करना, टिकट बुक करना वाले से सारे, यू कैन इफ यू वांट टू प्ले अ सॉन्ग, सो लॉजिकल, ना, दीज आर द लॉजिकल टेक्निक्स, नॉट अ फिजिकल इंप्लीमेंटेशन। सर द सेम वे लॉजिकली मींस थ्रू कोडिंग, थ्रू प्रोग्राम, इफ यू वांट टू कंट्रोल a particular form controls, ठीक है, कोडिंग द्वारा हम इस फॉर्म कंट्रोल्स को एक्सेस में लेना है, कंट्रोल करना है, तब लॉजिकल नेम का द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो फिजिकली कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम, वाया प्रॉपर्टीज। अभी इस फॉर्म का कलर में चेंज करता हूँ। सपोज ये फॉर्म प्रॉपर्टीज को मैंने सेलेक्ट किया यूजर फॉर्म, देन बैकग्राउंड कलर्स में गया मैं, फिर इधर जाके फिर ये कलर चेंज किया। द सेम टास्क कैन आई इंप्लीमेंट थ्रू कोडिंग आल्सो। एट द loading of my form, I can mention this task in the initialization event। जो फॉर्म के इनिशियलाइजेशन इवेंट के अंदर जब भी मैं फॉर्म ओपन खोलते समय पर ऑटोमेटिकली रेड कलर में आना है, ब्लू कलर में आना है, कुछ और कलर में आना है, तो वो कोडिंग द्वारा भी ही मैं कंट्रोल कर सकता। तो प्लीज आई थिंक यू पीपल्स आर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों का समझ में आया होगा, मैं आशा रखता हूँ। So now friends, today the form explanation only, then after that the design is very easy, within 10-15 minutes I can design this form। once again please I want to forward, means मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इस फॉर्म के बारे में, क्योंकि it is necessary to discuss with you, आप लोगों से बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि डिजाइन करने वाले आप लोग हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म ये लेबल है, आप साथ साथ इधर देख सकते हैं, ये जो बैक एंड में लेफ्ट साइड ऑल दीज आर लेबल्स to give the clarity to the data entry operator। data entry operator के लिए या तो फॉर्म प्रिंट करते समय पर, सामने वाले को सबमिट करते समय पर भी, if you want to provide the clarity, so डिटेलली आप क्लियरली समझाना चाहते हैं, तो ये क्या है, अशोक कुमार एम्प्लॉय स्टूडेंट है, या तो रोल नंबर है, या तो एम्प्लॉय कोड है, या कोड नंबर, तो वो चीज बताने के लिए रोल नंबर। सपोज ट्रेड जैसे हो सकते हैं BSc BCom वगैरह, तो वो ब्रांच हो गया, ना तो स्ट्रीम, लेकिन हमारा ITI में ट्रेड है, तो इसलिए कोपा CSC DTP that word will indicate the trade। so we are providing that information through label controls, all these are the labels, so we are using so many labels here। then these are the text box, this one is one combo box, trade purpose, कोपा DTP SP हमने प्रैक्टिस किया, general male or female, optional buttons, this one is one frame, I inserted a frame। then after that friends here date of birth, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंट्री करने के लिए 1 2 3 4 डे मंथ ईयर। देन आफ्टर दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास इंटर ग्रेजुएट मार्क्स, देन कैटेगरी जनरल OBC SC ST। वी आर ऑलरेडी इंडिविजुअली इंप्लीमेंटेड दीज कोडिंग्स, बट नाउ
finally, through a complete form, we can conclude all these controls in a complete form. अलग अलग इंडिविजुअली मीन्स अलग अलग फॉर्म कंट्रोल द्वारा हमने कोडिंग लिखा है, डिस्कस किया आप लोगों के साथ, मेल फीमेल को कैसे गेट करना है, क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं किया हमने, फिर इसके बारे में डिस्कस किया, जनरल ओबीसी एसटी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए डिस्कस किया हम लोगों ने चेक बॉक्स का सहायता से, वही फंड इधर यूज करेंगे हम. सो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया है. बाकी टेक्स्ट बॉक्स देयर इज नो न्यू कंट्रोल्स हियर, मतलब आपको ये नहीं लग रहा है इसमें एक नया फॉर्म कंट्रोल आया, इसके बारे में हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, ऐसे कोई कंट्रोल है नहीं मेरे फॉर्म को. ऑल दीज आर बटन्स, जो नीचे लिखा गया है बटन है ये. न्यू कमांड बटन, get here properties window, save, all these are buttons. Through buttons we can implement a task. बटन का द्वारा ही हम एक इवेंट को कंप्लीट करते रहते हैं अधिकतर. तो हम ये बटन का पीछे कोडिंग लिखते हैं ताकि जो भी टास्क है फिलफिल करने के. तो फ्रेंड्स प्लीज अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार रन करके दिखाते हैं, फिर ताकि हम डिजाइन करेंगे. तो सपोज देखिए, सबमिट सेव वगैरह नहीं करूंगा, सिर्फ दिखाना चाहता हूं मैं. एक स्टूडेंट का रोल नंबर 121, नेम विजेंद्र कुमार, ट्रेड लाइक दिस कोपा डीटीपी सीएसए. मैं ओनली बेसिक स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, चेंज करेंगे. तो मेल, डेट ऑफ बर्थ लाइक यू कैन एंटर 10 up to 31st, you can add it, you can check 1 2 3 जनवरी फरवरी मार्च लाइक दैट, वो भी ऐड कर सकते हैं हम. years we are considering some years only. 10th पास है, इंटर भी कंप्लीट, ग्रेजुएट तीनों ऐड कर सकते हैं. ओनली 10th है, सॉरी नहीं तो इंटर ग्रेजुएट नहीं है, ये दोनों चीज. मार्क्स 10th क्लास मार्क्स अगर प्रोवाइड कर सकते थे, नहीं तो बेसिक जो भी चीजें हैं. सो 550 मान लीजिए. तो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वन इज सेलेक्टेड जनरल. The particular person is belongs to the OBC, forcefully you can click that OBC, otherwise it selected the general. अगर आप OBC है तो OBC पर क्लिक करना, तब तो OBC सिलेक्शन में आ जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जनरल. तो डिफॉल्ट कैसे सेट करना कोडिंग में हम डिस्कस करेंगे. सिटी नोएडा, कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह जो भी है. सपोज कोलकाता, तो कानपुर का है. ओके, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, देन आफ्टर दैट सेव. विकेट हियर, मेरा फॉर्म के ऊपर डाटा आ गया है जो भी मैंने दिया. 121 रोल नंबर विजेंद्र कुमार, कोपा, सपोज डेट ऑफ बर्थ जो भी दिया मैंने वो डेट, फिर 10th क्लास सेलेक्ट किया है, इंटरमीडिएट भी, ग्रेजुएशन को सेलेक्ट नहीं किया है इसलिए ग्रेजुएशन कॉलम में नहीं है. आप लोग कृपया एक्सेल सीट पर ध्यान दीजिए, मैंने सेव बटन पर क्लिक किया है, एक्सेल सीट पर डाटा आ गया. ठीक है, 550 मार्क्स, जनरल, कानपुर, मोबाइल नंबर वगैरह भी डाला नहीं आप लोगों के सामने, इसलिए वो नहीं है. न्यू फॉर्म में क्लियर, दूसरा स्टूडेंट के लिए एक नया फॉर्म आ गया, तो इस फॉर्म को क्लोज करना चाहता हूँ. क्लोज. ओके, सो नाउ वी विल रेडी टू क्रिएट दिस फॉर्म. अभी तो जस्ट आपको समझ में आने के लिए, पता होने के लिए मैंने रन करके दिखाया है, लेकिन अब हम तो डिजाइन करके इंप्लीमेंट करेंगे. So if I want to design a new one, then in this also suppose if I am using then codings are mixed. You can select the different forms, but whenever you double click on this particular form, if you want to enter the coding window, then all are appeared. This one is the design mode. अगर आप running mode में तो design mode में जाने के लिए वो चीज नहीं. डबल क्लिक किया फॉर्म पर, ये रहा कोडिंग. 2-3 फॉर्म्स को ऐड करने के बाद सारे मिक्स होने के वजह से मैं ये कहना चाहता हूं, इसको छोड़ के मैं एक नया वर्कबुक लेके फिर नया फॉर्म क्रिएशन शुरू करना चाहता हूं. सो ड्यू टू दैट रीजन स्मॉल इंटरप्शन, आई एम स्टॉपिंग दिस स्क्रीन शेयरिंग. आई वांट टू ओपन न्यू वर्कबुक. that purpose now I want to share.
I think you people are visible the newly shared new workbook. Robin sir, sorry मैं डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ, दिखाई दे रहे क्या सर? जी सर दिखाई दे रहा है. Okay, thank you sir. So friends, so now our aim is we want to design the student form. So first of all, now practical section. So developer, then Visual Basic, insert, user form. This entire procedure is common. अब तक डेली हमने जो डिस्कस किया है उसी तरीके से हमने आज भी एक फॉर्म को ऐड किया है. देन स्टूडेंट फॉर्म, तो इस फॉर्म को F4 क्लिक करने की वजह से we are displayed the properties. If you want to display the properties keys, simply click on the F4 function 4 key, then immediately VBA will display the properties of the particular selected form controller form. फॉर्म को अभी सेलेक्ट किया हमने, फॉर्म का प्रॉपर्टीज आ गया. एक कैप्शन के अंदर क्या स्टूडेंट फॉर्म, तो सिंपली स्टूडेंट फॉर्म तो है स्टूडेंट फॉर्म. लॉजिकल नेम, if you want to assign the name, then FRM will indicate the form STUDENT, student. Okay, then remaining a same. Suppose we want to select this one every time, that's one, no, you can change it, no problem. Then fonts, okay, some small size 16. Now first of all we want to write student admission form. So that purpose we need one label. So here we need the tools, you can close here, form controls. So A will indicate the label. I simply selected and drag. Single click for editing purpose, directly caption. Then student admission form, I want to give a title of this form. Means form को ऊपर main heading student admission form. Okay, now after that I want to change some settings, F4. Then text alignment, center. And after that if I want to change some label, back color. Again, suppose if I want to implement some text to the color to the text, 4 color. So I selected the label one, 4 color. You can simple white or something. Okay, now roll number, second one, maybe copy paste or insert, again one label, both are equal, we are already studied, copy and pasted here. Then want to put it roll number purpose. Suppose I am using the second label, means copy and paste, make it duplicate, but automatically label number is changed, label 2. Observe here, that means it will indicate this is the second label of this current form. प्रस्तुत फॉर्म को ऊपर ये दूसरी लेबल है, ये बात बताता रहता है ये लेबल 2, क्योंकि एवरी फॉर्म कंट्रोल हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज. फॉर्म के ऊपर प्रति कंट्रोल के लिए अलग अलग अपना प्रॉपर्टीज है, तो उस प्रॉपर्टीज द्वारा ही हम कोडिंग के अंदर काम में ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये तो लेबल 2 अभी रहने देते हैं, सिंगल क्लिक फॉर एडिशन पर्पस. सो नाउ आई want to write roll number. First of all we are designing the form, please concentrate here. Then I want to change this properties, the left side for designing of this form. This one is a heading, due to that reason center alignment, but the labels will designing using in place of as a
form designer indicators you can assign left alignment. फॉर्म को ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स का या कॉम्बो बॉक्स के बारे में बताने के लिए लेबल को काम में लिया है तो उसको हमेशा लेफ्ट में रखने से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते। रोल नंबर अब हम इसको काम में कॉपी करेंगे, then we can copy it, then it is the better, there is no need to change the alignment and remove the lengthy text। अगर इसको भी कॉपी करके हम काम में ले सकते हैं, लेकिन बार बार ज्यादा टेक्स्ट होने के कारण से अंदर वो टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा, फिर सेंट्रल एलिमेंट को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इसको लेफ्ट भी किया हमने, टेक्स्ट भी कम किया है, सो ड्यू टू दैट रीजन हम इसको काम में लेंगे। What I'm telling here, after setting according to our form, you can set a control, form control, then you can simply make it copy and paste। मैं मेरे जरूरत के अनुसार रोल नंबर टेक्स्ट को टाइप किया, टेक्स्ट मतलब हेवी टेक्स्ट को डिलीट करके फिर अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया मैंने, इसी को ही काम में लेना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके कॉपी, देन अगेन राइट क्लिक करके पेस्ट। आई कैन चेंज इट वन बाय वन, पेस्ट। वी आर फॉलोइंग द सेम कंट्रोल ग्रिड लाइंस फॉर यूनिफॉर्मिटी के लिए। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus heading 12 labels. We are already using the 4. So paste. Copy paste like up to 12. Aim is I want to design the form quickly. Friends, you can select the number of controls according to our need। अपना जरूरत के अनुसार हम फॉर्म्स को ऐड कर सकते, कंट्रोल्स को ऐड कर सकते। 1 3 plus 6 8। now we need another 3। is access, then no problem, you can remove it। Suppose it is very nearer, then I change it। Okay. So now first roll number, in front of that roll number we want to get the data, one text box is needed, so I selected the text box and added here। roll number is very small, up to 3 digits, okay, like this। then name, second one is single click for editing purpose, editing, and here name। then again I need a text box, copy paste। we are not changing here at this moment logical numbers, we are simply designing the form। अभी हम लॉजिकल नेम्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पहले फॉर्म को डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो टू पोजीशन ट्रेड, सिंगल क्लिक फॉर कैप्शन TRAD, trade। trade we are using combo box, so then we'll go to the controls, form controls, we can identify the combo box where it is available, list box, combo box। okay, simply click it, select and drag it here, Popa DTP-SP like this, trade। then after that gender, single click, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंड अगर जरूरत है तो ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम जस्ट वी आर यूजिंग मेल एंड फीमेल ओनली। ओके, देन मेल एंड फीमेल ऑप्शनल बटन्स, रेडियो बटन्स। व्हाई यू आर यूजिंग दिस रेडियो बटन्स? by using radio buttons you always select only one option। आप एक से अधिक ऑप्शन में से हमेशा एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तब उस संदर्भ में हम ऑप्शनल बटन या रेडियो बटन को ही काम में लेते हैं। तो जेंडर में या मेल और फीमेल दोनों में से एक सेलेक्ट करना है तो ऑप्शनल बटन यानी रेडियो बटन को ही हम काम में लेंगे। तो सेलेक्टेड दिस वन, ड्रैग्ड हियर, this is the male purpose, single click, okay, option button, radio button, simply change the caption, male, control C, copy and paste, single click, caption, editing purpose, female। Suppose if it is not visible, increase the
लेंथ ऑफ द कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल का लेंथ बढ़ने की वजह से हम ऊपर जो भी लिखा वो पहचान सकते हैं। जेंडर का बाद डेट ऑफ बर्थ, simply you are written here the DOB, you can mention the date of birth also, no problem. So date of birth purpose we are using 3 combo box, one is date, second one is month, third one is the year. So I have already one combo box, copy, then right click, paste. I want to adjust here my date of birth, date purpose means din 1 2 3 up to 31st. Again I need another one, use it for month, then third one year. If you want to provide the clarity, you can use the labels on the top side, DD, MM, YY. Okay, we can add it in later. अभी हम बाद में ऐड करेंगे. अब next one is educational qualification. बट में हम लिखा है educational. You can write on any one. It is a label, no problem. हम पूर्ण तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं. Then education qualifications we are using check boxes. एक स्टूडेंट 10th पास होने के बाद immediately ITI में एडमिशन ले सकते हैं. Suppose if a student is passed 10th passed, ITI eligibility is 10th pass, entry level CTS courses purpose, so 10th class. Okay, maybe that student passed the 12th 10 plus 2 12th, maybe he is a graduate or she is a graduate also, graduate holder. So अगर उन्होंने डिग्री भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया तो फिर वो फॉर्म में डाटा कलेक्ट करने के लिए तो एक से अधिक क्वालिफिकेशन हो सकते हैं एक स्टूडेंट का पास एंट्री लेवल के अलावा, इसलिए हम चेक बॉक्स को ही काम में. Where you want to select more than one option, in that time you can use the check box. दिया गया ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के समय पर अब चेक बॉक्स को काम में यूज. एक से अधिक ऑप्शंस, 10th भी है 12th भी है, 10th को टिक करना 12th को भी है, ग्रेजुएट भी है 10th 12th ग्रेजुएशन, ओनली 10th तो 10th पर क्लिक करेगा. 10th क्लास है तो 10th, फिर राइट क्लिक कॉपी पेस्ट हियर, then again right click paste, graduation purpose. Okay friends, I want to cover the clarity gap between these three. Okay, then I change here, single click 10 plus 2 intermediate, so from here I mentioned the graduate, single click and type, or you can type here caption. Look at here, when I am typing writing here directly, that will be appeared in the caption properties. बार बार कैप्शन पर जाके क्लिक करके टाइप करने की वजह से फॉर्म के ऊपर भी सिंगल क्लिक, फॉर्म कंट्रोल को सेलेक्ट करके सिंगल क्लिक करने की वजह से कैप्शन को हम एडिट कर सकते हैं. If you want to edit the caption directly without go to the properties window, then you simply apply the single click on that particular form control, then cursor will be provided for editing purpose. If it is not appear, not displayed, increase that one. We are already discussed. हमने बातचीत किया है. अगर आपने टाइप किया गया कैप्शन संपूर्ण तरीके से फॉर्म के ऊपर शो नहीं कर रहा है, तब हम लेंथ बढ़ाने के वजह से पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं कैप्शन. Then education qualification का बाद we have 5 minutes time. We want to finish this form. After education qualifications, then we are using marks. Single click, marks. Text box is needed to read the marks. Why I am selecting a small one means marks 550, 450 up to 600. So little bit width is enough. Total width से आसान से हो जाएगा. इतना नेम का जैसे मतलब हेवी फिगर को रीड नहीं करेंगे हम. सपोज
मैक्सिमम मार्क्स आर 600 ना, सो देयर आर 3 डिजिट्स आर देयर। एक स्टूडेंट का हाईएस्ट स्कोरिंग कितना हो सकता है? 600 में से 600 है ना, तो 600, 3 डिजिट्स, और 500 मैक्सिमम मार्क्स। अगर स्टूडेंट भी 500 स्कोर किया तो 3 digits. So according to our need, we can resize the control. अपना डाटा का अनुसार, जरूरत का अनुसार, डाटा रीडिंग का अनुसार फॉर्म कंट्रोल का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 डॉट्स मींस ग्रिड लाइंस है, इसमें एक ही दिखाई दे रहा। That means at the time of designing, these controls are moved from left side, थोड़ा बहुत little bit अंदर गया है, तो इसको हम हल्का से मूव करें, भी नहीं, like this. From the beginning I was explained, these grid lines are helpful to design the form. फॉर्म को डिजाइन करने के लिए ग्रिड लाइन को हम काम में ले सकते हैं, ये डॉटेड लाइंस। ओके, और इफ यू आर फीलिंग हेवी ज्यादा हो गया तो फिर okay friends, now marks, after marks category, general, SC, ST, OBC, so single click editing purpose, category. I need the text box to read the category. No, sorry, this category purpose we are using optional buttons, radio buttons. Among 4 options, general, OBC, SC, ST, we want to select only one option. So a candidate belongs to only one category. That particular candidate at the same time is not eligible to belongs to more than one category. एक इंसान, एक स्टूडेंट, नहीं कोई भी इंसान एक ही कैटेगरी को बिलोंग करता है, व्यक्तिगत रूप से है, एक से अधिक को नहीं, तो कैंडिडेट एससी में भी, एसटी में भी, या तो ओबीसी में भी एक से अधिक कैटेगरी में दिखा नहीं दे सकता। सो इसलिए ऑप्शन बटन, सो दिस इज आवर ऑप्शन बटन, सो वी वांट टू make it copy and paste here. Again I need another one. अभी भी कॉपी एक्टिव मोड में है, मैं कॉपी करके आया हूँ। राइट क्लिक करके पेस्ट करने से फायदा है, नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन पेस्ट इट। तो डायरेक्ट एंटर दबा दो, एक ही बात एक्सेल में, वर्ड में। कॉपी करने के बाद अगर एंटर दबा दिया आपने एक्सेल में, वर्ड पेस्ट में, one time it will be paste. If you are applying Control V, you can make it number of times the same way. Okay, so here I want to change this caption. Friends, please make a patience, don't feel any bonus, because today is our form designing class. Tomorrow means next class we can enter into the coding. So here sorry, gender I cannot category na, sorry, box I need text box. I think these are in here. I think we are already added here. Okay, here it was gone. Guru sir, we have limited time, sir. Okay sir, okay sir, I can conclude it. So now friends, these are the marks reading purpose, text box, and this one is our category, general. OBC. Sir, I can close within my time. Only 1-2 minutes I can take extra. Sorry. General, OBC, then SC, after that ST. Set neatly in tomorrow class. Single click for editing. Okay. Then after that, city. Text box is needed. Copy and paste. Then after that, contact number.
then I need a text box, mobile number, then email ID. It is also one of the text box. Friends, I received a message from the new department. So my time is there. Finished. This is the way of the designing the form. Okay, some buttons are there. So no problem, we can design that buttons, or only 1 minute. Suppose I go here control box, then I find out the button, command button. I take here one button, just only 2-3 I added. Then single click. New means new form purpose. When I want to enter a new student details, I need a new form. Right click, copy, then paste, save. According to my first form, it was just shown to you. तो मैंने आपको दिखाया शुरू में, उसी का हिसाब से मैं ऑप्शन से प्रोवाइड कर रहा हूं मैं. न्यू, सेव, देन आफ्टर दैट एडिट. Only one line I want to complete. Then tomorrow next class we will continue it. Edit, then inquiry, right click, paste, single click for editing purpose, inquiry, then close. Click. Okay friends, so here second buttons we can add in the next class. We want to run and check it. This is my form, empty form. मतलब हमने क्या किया, अभी फॉर्म को डिजाइन किया है. जस्ट वी आर डिजाइन ए फॉर्म इन द VBA. VBA का अंदर जो एक फॉर्म को, सुंदर फॉर्म को डिजाइन किया है. दिस फॉर्म कंटेंट्स इज डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट. जैसे हम एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Maybe that is a school, college, industry, factory, company, whatever it may be. The company management, school management was given the instructions to the operator. So to please collect the data in the form of like this. मुझको ये इत्यादि कॉलम्स का इंफॉर्मेशन मुझको चाहिए. उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेल शीट में सेव करना है, ताकि मैं एक्सेल शीट को आसान से आपस में हैंडल कर सकता हूँ. आप फिर को एक्सेल को पता मान लीजिए, तो एक्सेल में डाटा सेव करने के लिए कहा. आप एक सुंदर फॉर्म को क्रिएट करना है, फॉर्म का द्वारा डाटा एंट्री करना है, तब आप VBA के अंदर इसी तरह एक फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो. अभी डाटा एंट्री करते समय पर अगर आपने सपोज सेव पर क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा. डाटा तो एंट्री कर सकते हो. अभी 111 सर, रुबिन सर, I closed it. 1 minute only बस. Guru sir, we have already exceeded time, sir. Okay. Friends, sorry. So अभी देखिए इसका अंदर कोई डाटा नहीं है, हमने कोडिंग लिखा नहीं. सेव पर क्लिक करता हूँ, एक्सेल शीट पर भी कोई जाएगा नहीं. There is no action on the Excel sheet because we are not finished the code. So that code will be continued in next class. अगली क्लास में हम कोडिंग लिखेंगे. Sorry sir, Rubin sir. Thank you friends. In this moment, at this moment, I want to finish this class. इसी वक्त पर इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ. Thank you very much. Tomorrow we will meet once again at the same time. कल का क्लास में हम मिलेंगे, इसके कोड को कंप्लीट करेंगे. Okay, thank you sir, Robin sir. Thank you sir. Thank you very much. Okay.